Hello students, welcome to Crack Grade B online learning platform. So today in this video lecture we are going to discuss how to prepare for the general awareness. बहुत सारे क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स के, बार बार इंक्वायरी भी आ रही थी कि हमें जनरल अवेयरनेस के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, फ्रॉम व्हेन वी शुड स्टार्ट स्टडिंग द करंट अफेयर, व्हाट are the main things we have to cover like newspaper, CA, PIB, reports and circular, what type of uh, content we have to study for the current affairs for general awareness part in RBI Grade B exam. So I will be discussing in detail how to prepare for the general awareness, and this is the best strategy for general awareness. You cannot skip anything which I will be mentioning here based on the previous 4-5 years analysis. So let's see first the analysis. What is the weightage of the each part in the current affairs, or we can say the general awareness part of RBI Grade B. So this is of last 2 years. You can see that regulatory body circulars, these are the most important thing for the general awareness part. Regulatory body circulars plus reports, these are the most important thing. You cannot skip. Only from the report of the regulatory body, if we talk about the RBI reports plus international organization report, more than 20 questions were asked from only from the reports. If we include the international institutions report, flagship reports, which and the reports which were in news in last 3-4 months, we have to study the reports, old reports also, but those are the flagship reports. Flagship reports are example, I can give the example like Human Development Index, Global Gender Gap, World Population Report, World Development Report, Global Hunger Index, Multidimensional Poverty Index, Niti Aayog SDG Index. These are the flagship report. These you have to study the old one also. I mean, if it is released before 6 months or 8 months, then you have to study these flagship reports. Then the reports which are in news in last 3-4 months, like living index, European Union living index is being released, global agriculture export. This year they asked the question, those were in the news in last 3-4 months. Those reports are also important. They target such reports and they ask direct question from those reports in RBI Grade B general awareness or other banking exams also. So this strategy will be helpful for every banking exam. So you can see that in 23 also approximate 20 plus question in SIFT 2 were asked in 2023 from regulatory body circular reports. In 24 SIFT 1 25 questions approximate. These are from the memory based, and total all 80 questions were not available. 72 I think 75 questions were available for the both the SIFT. 70 in the morning also, 70 to 75 questions. Same for the SIFT 2. Approximate 72 questions were available for the SIFT 2. So based from those questions, 25 were from the RBI circulars, or we can say that RBI regulatory body circulars and other regulatory like SEBI, NABARD, IFSCA, IRD, any news is there. PFRDA, these are the important news. So first main focus, you have to RBI circulars. First main focus of yours should be on RBI circular. RBI circular सबसे important चीज है अगर आपको RBI के एग्जाम में जनरल अवेयरनेस में अच्छा स्कोर करना है। एवं अदर रेगुलेटरी बॉडी के एग्जाम्स हैं या कोई भी बैंकिंग एग्जाम्स, आजकल RBI के सर्कुलर्स की काफी वेटेज है। ये लास्ट 6-7 मंथ्स के तो करने ही करने हैं आपको, 6-7 मंथ्स के जो न्यूज में है, बट कुछ फ्लैगशिप सर्कुलर्स हैं वो आपको आने चाहिए। उसका भी हमने सेशन लिया था यूट्यूब पे, 50 फ्लैगशिप सर्कुलर्स की लिस्ट हमने डिस्कस की थी। तो उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दे देता हूँ, जैसे पेमेंट बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग हो गया, NBFC का सर्कुलर है, आपका बेसल नॉर्म्स का सर्कुलर है। तो इस तरह से लीड बैंक स्कीम हो गई, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन हो गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी के ऊपर में सर्कुलर है RBI का। तो ऐसे 50 सर्कुलर्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप RBI के लिए सीरियसली तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दो सर्कुलर यू हैव टू study or you have to
क्रैम द फैक्ट्स फ्रॉम दोज सर्कुलर्स। एग्जांपल दे दिए हैं मैंने, जैसे पेमेंट बैंक है तो पेमेंट बैंक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेमेंट बैंक का मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है, पेमेंट बैंक के फीचर्स क्या है, पेमेंट बैंक कहाँ कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेम स्मॉल फाइनेंस बैंक का है, लोन की लिमिट्स क्या है, कितना CRAR मेंटेन करना है स्मॉल फाइनेंस बैंक को, स्मॉल फाइनेंस बैंक का मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है, पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होने के लिए मिनिमम कितने ईयर रिक्वायरमेंट है। इस तरह के फीचर्स आपको आरबीआई के सर्कुलर से मिलेंगे। जैसे कि एक सर्कुलर है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के ऊपर, तो LRS का जनरली क्वेश्चन किसी भी बैंकिंग एग्जाम में मिल जाता है कि LRS का लिमिट क्या है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग पे सर्कुलर है, तो उससे भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं जनरल अवेयरनेस में। दूसरा आता है रिपोर्ट्स आरबीआई की। रिपोर्ट्स, अगर एनुअल रिपोर्ट की बात करें तो ये आपकी जीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरह से गोल्ड माइन है आरबीआई के जीए के बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आरबीआई के फंक्शंस के ऊपर में भी बहुत सारी चीजें कवर होती है, प्लस पूरे साल का आरबीआई के सर्कुलर्स के बारे में भी मेंशन होता है कि लास्ट 1 ईयर में जो भी मेन सर्कुलर रिलीज किए थे वो सब मेंशन होता है। तो आरबीआई की रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट होती है जो लेटेस्ट होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आप सीरियसली आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद जो भी रिपोर्ट आई है, जैसे अभी ट्रेंड्स इन बैंकिंग एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट है, सिलेबस में भी मेंशन है। उसके बाद आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, करेंसी एंड फाइनेंस एक रिपोर्ट आती है, और भी जैसे इन ओमेंट्स की रिपोर्ट भी आती है एनुअल, तो वहां से भी कुछ डेटा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, आरबीआई की प्रेस रिलीज से क्वेश्चन आते हैं, आरबीआई के नोटिफिकेशन सर्कुलर से क्वेश्चन आते हैं। तो लास्ट 6 मंथ का तो आपको बहुत अच्छे से करना है। एग्जांपल्स भी दूंगा मैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद पीआईबी, देखो 2019, 21, 20 में एग्जाम नहीं हुआ था, 21, 22 पीआईबी से काफी क्वेश्चन आते थे, मतलब 20 तक भी क्वेश्चन आ जाते थे लास्ट ईयर तक। बट इस साल एक शिफ्ट में 12 क्वेश्चन आए हैं, शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में 5 क्वेश्चन आए थे, तो पीआईबी की वेटेज कम थी एक शिफ्ट में। बट इसके लिए हम पीआईबी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको फेज 2 में यू हैव टू स्टडी द पीआईबी फॉर फेज 2 एज वेल। तो फेज 2 में भी हम पढ़ते हैं, फेज 2 में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पीआईबी से काफी, तो एटलीस्ट टारगेट करके चलो कि आपको फेज 1 के लिए भी पढ़ना है। फाइनेंस एंड बैंकिंग स्टैटिक 4, अगर हम इनडायरेक्टली बात करें ना, डायरेक्ट तो 4-5 क्वेश्चन थे, इससे ज्यादा ही आते हैं। अगर हम करंट और स्टैटिक से लिंक चीजें भी पूछी जाती है करंट में, जैसे कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स पे क्वेश्चन आया था, तो उसका स्टैटिक पार्ट भी पूछा गया था, उसका करंट से भी रिलेटेड डेटा पूछा गया था, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे जिसमें करंट प्लस स्टैटिक कॉन्सेप्ट दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये भी आपके ना 10 से 15 क्वेश्चन आपका स्टैटिक कंसीडर करके चल सकते हो कि 10 to 15 मार्क्स के स्टैटिक से भी क्वेश्चन आते हैं। आपको स्टैटिक कॉन्सेप्ट आएगा तभी आप करंट वाला भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसमें जो करंट से मिक्स करके क्वेश्चन बना दिया जाता है, उसमें स्टैटिक भी होता है प्लस में करंट पार्ट भी होता है, तो आपको स्टैटिक आना भी जरूरी है। तो आप ऐसे क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं जिसमें स्टैटिक कॉन्सेप्ट की भी नीड होती है, वो स्पेसिफिकली आरबीआई से रिलेटेड या आपके फाइनेंस पार्ट से रिलेटेड होते हैं। मैं उनके एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा आपको। बजट से इस साल बहुत कम क्वेश्चन आए थे, शिफ्ट 1 में 5 थे, शिफ्ट 2 में 4 थे। इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, जनरली 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, बट फेज 1 में नहीं आए थे, तो फेज 2 में काफी क्वेश्चन आए थे इकोनॉमिक सर्वे से, तो उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फाइनेंस एंड बैंकिंग स्टैटिक में बता रहा हूँ, आप अगर आप टॉप 50 सर्कुलर कर लेते हैं, जो हमने यूट्यूब पे लिस्ट दी हुई है, तो आपका 60-70% फाइनेंस का स्टैटिक पार्ट वहां से कवर हो जाता है। और आप फेज 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं आरबीआई के लिए, तो उसमें फाइनेंस का लगभग स्टैटिक पार्ट अगर आप कवर कर लेते हो जीए फेज 1 से पहले, तो आपका जीए में काफी हेल्प होती है उससे। स्कीम से इस साल नहीं पूछी गई थी, जनरली गवर्नमेंट स्कीम से भी कुछ फ्लैगशिप स्कीम हमेशा पूछी जाती थी जनरल अवेयरनेस में, बट इस साल नहीं पूछी गई थी। बट फेज 2 के लिए हम पढ़ते हैं, तो इसलिए वो भी कई बार जीए में, जैसे 23 तक 21, 22, 23 में काफी गवर्नमेंट स्कीम्स पूछी गई थी, इस साल नहीं पूछी गई हैं। तो बट इसका मतलब ये नहीं है कि आगे नहीं पूछी जाएंगी, तो हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते, फ्लैगशिप स्कीम आनी चाहिए। जैसे लास्ट ईयर 8 भी क्वेश्चन आए थे स्कीम से,
फिर आता है अपना इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट से क्वेश्चन बहुत आते हैं। इस बार इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें प्लस इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो 14 to 15 क्वेश्चन आए थे, जिसमें रिपोर्ट थी पॉपुलेशन रिपोर्ट हो गई, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, ग्लोबल से वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट से क्वेश्चन आया था, ग्लोबल जेंडर गैप से क्वेश्चन आया था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो गया, एक एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट का इंडेक्स था जिसमें टॉप 5 कंट्रीज के बारे में पूछा गया था, जैसे टॉप 5 स्टील प्रोड्यूसर, टॉप 5 गोल्ड प्रोड्यूसर कंट्रीज, टॉप 5 गोल्ड इंपोर्टर। इस तरह के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में। तो इस तरह की रिपोर्ट्स जो लास्ट 3-4 मंथ में है, और जो फ्लैगशिप रिपोर्ट होती है वो आपको पढ़नी होती है, चाहे वो 8 मंथ्स पहले आई हो या 1 ईयर पहले। जैसे ग्लोबल जेंडर गैप है, ये बहुत पहले आई होगी बट 3-4 मंथ की न्यूज में नहीं रही होगी, बट इंपॉर्टेंट होती है। बट न्यूज़पेपर करंट अफेयर देखो 3 to 4 मंथ का ही रिकमेंड करता हूं मैं, इससे ही मैक्सिमम 80% क्वेश्चन करंट अफेयर के यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। एवन आप पीआईबी भी पढ़ रहे हैं तो 4-5 मंथ मैक्सिमम पीआईबी पढ़ो, 3-4 मंथ का न्यूज़पेपर पढ़ो, बहुत सारे फैक्ट्स डेटा पढ़ने होते हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से होते हैं। और अगर आप 30+ भी स्कोर कर लेते हैं ना, जीए में बहुत अच्छा स्कोर होता है आज के टाइम में, जैसा जीए का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग 30+ भी आप स्कोर कर लेते हैं, बहुत अच्छा है। तो इसके लिए आप देखो जितना कम कंटेंट पढ़ेंगे, मतलब 3 मंथ्स का पढ़ेंगे, उतना ही क्रैम कर पाएंगे। बहुत सारे फैक्ट आपको याद रखने होते हैं। साइंस एंड टेक से क्वेश्चन आते हैं, 4-5 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं, स्पोर्ट्स से रहते हैं, बाकी करंट अफेयर मिक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो न्यूज़पेपर करंट अफेयर से डायरेक्ट आते हैं। एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे पीआईबी से क्वेश्चन आया था, आईपी ही फ्रेमवर्क, बार बार न्यूज में था, न्यूज़पेपर में भी आया था, ये इस साल का एग्जाम्पल है क्वेश्चन का। तो मेंबर पूछ लेता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ आईपीईएफ फ्रेमवर्क। एवन न्यूज में है कोई भी इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात, जैसे क्वाड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में आया था, कौन उसका कंट्री मेंबर नहीं है। तो अगर आपका करंट में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मेंशन है, उसके मेंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, और फेमस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही पूछता है जो न्यूज में है। ये पीआईबी में भी था, आपका न्यूज़पेपर में भी था। फिर जैसे स्पोर्ट्स में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, अविनाश साबले ब्रोक हिज नेशनल रिकॉर्ड इन स्टीपल चेज। ओलंपिक में रिकॉर्ड चेज अपना ही नेशनल रिकॉर्ड ब्रोक किया था, तो उन्होंने स्टीपल चेज के बारे में पूछ लिया था, स्पोर्ट्स के बारे में पूछ लिया था, न कि उसका नेशनल रिकॉर्ड और नाम पूछा प्लेयर का, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया था। तो इस तरह की चीजें आपको माइंड में रखनी है वाइल स्टडिंग करंट अफेयर, वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द आरबीआई गेट बी एग्जाम। एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस का पीआईबी से क्वेश्चन था, ठीक है। ये आया आरबीआई के प्रेस रिलीज और सर्कुलर में, आप कंसीडर कर सकते हो इसको। फुली एक्सेसिबल रूट में गवर्नमेंट ने लिमिट हटा दी थी, नो लिमिट, तो यही पूछ लिया गया था कि उसकी लिमिट क्या है फुली एक्सेसिबल रूट के ऊपर में। तो इसका आपको स्टैटिक भी पता होना चाहिए, 2-3 ऑप्शन थे आई थिंक, इसमें स्टैटिक कॉन्सेप्ट भी पूछा था और करंट भी पूछा था। अगेन ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन वाला क्वेश्चन था, ये आपका पीआईबी से था, पीआईबी में भी कवर था ये। आप पीआईबी अगर आपने पढ़ इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि पीआईबी में इस बार अगर कम क्वेश्चन आए तो ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट ईयर भी कम आएंगे। आपका फेज 2 के लिए भी पढ़ना होता है आपको, बट फेज 2 के लिए इस टाइप की न्यूज नहीं पढ़नी होती है, जो सोशल इशू से रिलेटेड न्यूज ही फेज 2 के लिए इंपॉर्टेंट होती है। बट हम फेज 1 के लिए इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एटलीस्ट सुबह वाली शिफ्ट में अगर हम देखेंगे, मॉर्निंग शिफ्ट जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें 12 क्वेश्चन आए थे पीआईबी से, सेकंड शिफ्ट में कम आए थे, 4-5 क्वेश्चन ही थे। ये देखो करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट से पूछा था कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हैव स्ट्रीमलाइन सब्सिडीज एंड रिड्यूस लीकेज विद, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन की फॉर्म में ही प्रोवाइड कर रखा था, तो आपको जो अगर हमारा कंटेंट पे रिलाई कर रहे हैं उनको खुद से पढ़ने की जरूरत नहीं है, कंटेंट को पढ़ोगे, बार बार रिवाइज करोगे, यू कैन अटेम्प्ट
मोर क्वेश्चंस और यू कैन गेट ए गुड स्कोर। 40 प्लस भी स्कोर आया इस साल हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स का जीए में। जैसे नीति आयोग के इंडेक्स के ऊपर में क्वेश्चन था, स्टैटिक पार्ट से है ये। एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम बार बार से ये पीआईबी न्यूज में था, पीआईबी में बार बार न्यूज में आ रहा था, तो इन्होंने उसके डिटेल्स पैरामीटर के ऊपर में ही क्वेश्चन पूछ लिया था। ये बजट से क्वेश्चन था, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के ऊपर में। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर की डेफिनेशन पूछी गई थी, सर्कुलर से था ये। आरबीआई के इंस्ट्रूमेंट्स, मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट पे क्वेश्चन था, स्टैटिक पार्ट। ये सब आप फाइनेंस स्टैटिक में पढ़ते हैं। इसके बाद हाईएस्ट सीडी रेशो प्राइवेट बैंक्स का था, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो के बारे में पूछा गया था। एफएसआर रिपोर्ट से क्वेश्चन लिया गया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस को टारगेट करता है जनरली आईबीपीएस के एग्जाम्स में। डब्ल्यूएमए से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। करंट जो आरबीआई का सर्कुलर था वहां से भी पूछा था, प्लस स्टैटिक पार्ट से भी। डब्ल्यूएमए के बारे में जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट है हम पढ़ते हैं फाइनेंस में, तो वो भी पूछा था। प्लस में इसमें करंट में जो एक आरबीआई का सर्कुलर था, लिमिट अबाउट जो डब्ल्यूएमए की लिमिट थी वो 1 साल के लिए, तो वो भी इंक्लूड की थी। तो मल्टीपल स्टेटमेंट, तो इसलिए आपको स्टैटिक भी पढ़ना जरूरी है। फिर थीम ऑफ द बजट, फिर ये क्वेश्चन था, मैंने बताया था कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का स्टैटिक प्लस आपका करंट पार्ट दोनों को इंक्लूड करके पूछा गया था। क्राइलिक, सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्रेडिट, ये भी आरबीआई की वेबसाइट से, आरबीआई के सर्कुलर्स में कई बार डिस्कशन होता है इसका। स्टैटिक पार्ट है, मैंने जो टॉप 50 सर्कुलर बताया उसी में कहीं पे कवर है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो स्टैटिक भी मैंने बताया ना, 10 से 15 क्वेश्चन आपके स्टैटिक अवेयरनेस से हो जाते हैं सोल्व। आपको स्टैटिक अवेयरनेस आनी चाहिए आरबीआई के सर्कुलर स्पेसिफिकली। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट से क्वेश्चन था, मैंने बताया कि फ्लैगशिप रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक एचडीआई पे क्वेश्चन था, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट के ऊपर में क्वेश्चन था। तो ये फ्लैगशिप रिपोर्ट्स हैं, चाहे 6 महीने या 8 मंथ्स भी पुरानी है, इस तरह की रिपोर्ट उनसे क्वेश्चन आता। और स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, मैंने जैसे बोल दिया कि 6-8 मंथ की रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, तो सारी की सारी रिपोर्ट जितनी होगी उनकी लिस्ट बनाएंगे, कहीं से भी मिल रही है पढ़ने लग जाते हैं। इतना डेटा पॉसिबल ही नहीं है याद करना। मैं कह रहा हूँ 3-4 मंथ्स से कोई भी रैंडम रिपोर्ट्स हैं वो 3-4 मंथ की लास्ट की करनी है आपको। फ्लैगशिप रिपोर्ट ये होती है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस हो गया आपका, ग्लोबल जेंडर गैप है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ये सब रिपोर्ट्स हैं वो फ्लैगशिप रिपोर्ट होती है। प्लस जीडीपी रिपोर्ट बाय द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसमें आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ओईसीडी ये सब आता है। ये आरबीआई का सर्कुलर था, रीसेंट सर्कुलर से क्वेश्चन था, लास्ट 3-4 मंथ के अंदर ही सर्कुलर था ये। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स पे एक और क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन आए थे। फिर आया रिटेल डायरेक्ट स्कीम। रिटेल डायरेक्ट स्कीम आपका आरबीआई का सर्कुलर है, आरबीआई की गाइडलाइंस है और स्टैटिक पार्ट में पढ़ते हैं हम। और ये टॉप 50 सर्कुलर की लिस्ट में भी हमने इंक्लूड किया होता है। यहां से भी एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है लगभग। फिर अगेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट से क्वेश्चन था कि हाईएस्ट इंश्योर्ड डिपॉजिट रेशियो कौन से बैंक का है। जो हमारा डीआईसीजीसी है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट कॉर्पोरेशन, वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है बैंकों का डिपॉजिट के अगेंस्ट में। तो किसका हाईएस्ट इंश्योर्ड डिपॉजिट रेशियो था ये पूछा गया था एफएसआर में। तो इस तरह के क्वेश्चंस को टारगेट किया जाता है रिपोर्ट से। ये आरबीआई सर्कुलर का था कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के बारे में पूछा था क्वेश्चन। तो ये आरबीआई का सर्कुलर था, लेटेस्ट सर्कुलर था। फिर एक एक्सटर्नल डेट के बारे में था, ये आपका आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट में भी था आई थिंक, और ये आरबीआई की प्रेस रिलीज में भी था। एक्सटर्नल डेट के बारे में क्वेश्चन था, ये आपका इकोनॉमिक सर्वे में भी था आई थिंक। हाईएस्ट और लोएस्ट शेयर पूछा था, एक शिफ्ट में हाईएस्ट शेयर ऑफ इंडिया एक्सटर्नल डेट पूछा था, एक में पूछा था कि लोएस्ट शेयर किसका है इंडिया के एक्सटर्नल डेट में। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन थे ये।
PIDF स्कीम, अगेन टॉप 50 सर्कुलर में ये इंक्लूड कर रखी है हमने, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम। ये रिसेंट न्यूज में भी थी और आपका इससे इन डेप्थ क्वेश्चन पूछा गया था इसी की गाइडलाइन से रिलेटेड। ये अगेन आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट और आई थिंक इकोनॉमिक सर्वे में भी था ये क्वेश्चन, बट आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट अगर आपने पढ़ी है तो उन्होंने पूछा था इंक्रीजिंग एफपीआई इनफ्लो एंड आउटफ्लो, बट आरबीआई कैप्ट द डॉलर टू रुपी एक्सचेंज रेट इन विच रेंज पूछी गई थी पूरे साल की, किस रेंज में रहा था डॉलर टू रुपी का एक्सचेंज रेट है। ये आरबीआई का सर्कुलर था जो फ्रॉड से रिलेटेड एक सर्कुलर था, फ्रॉड फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड विलफुल डिफॉल्टर के ऊपर में 2 सर्कुलर आए थे और रिसेंट में ही आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, एक्सपेक्टेड था क्वेश्चन, तो इसलिए हमने टॉप 100 में डाला था। ये बहुत सारे क्वेश्चन टॉप 100 सीरीज में थे क्योंकि हमें पता था बेस्ड ऑन द एनालिसिस वी आर प्रोवाइडिंग दिस करंट अफेयर, तो ये पूछा जाना था इंपॉर्टेंट, इसलिए हमने ये कंटेंट में डाल रखा था। कंटेंट में तो था ही, प्लस टॉप 100 सीरीज में जैसे PSLC प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 क्वेश्चन आपका जीए में आ जाता है जनरल अवेयरनेस में, इसलिए हमने ये कंटेंट टॉप 100 में भी डाला था, तो वहां से भी क्वेश्चन आया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फिर हैकाथन के ऊपर में बहुत इंपॉर्टेंट था ये भी, हैकाथन की थीम पूछी गई थी, हैकाथन की थीम पूछी गई थी, नोट इन्होंने लेटेस्ट थर्ड की नहीं पूछी थी, सेकंड की पूछी थी, आई थिंक सेकंड की, ठीक है, थर्ड न्यूज में थी बट इन्होंने सेकंड की थीम पूछ ली थी, तो बट कंटेंट में हमने सेकंड की हैकाथन की भी थीम प्रोवाइड की थी क्योंकि बेस्ड ऑन एनालिसिस हमें पता है कि वो या तो लेटेस्ट पूछेगा, नहीं तो उससे पीछे वाली जो भी उससे लिंक्ड इवेंट है उससे पूछ लेता है। जैसे कि हम अगर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की बात करते हैं आरबीआई में, कि सर्कुलर्स आरबीआई की प्रेस रिलीज में पढ़ते हैं, तो उसके डिफरेंट कोहर्ट्स हैं, तो वो कई बार जैसे 5 कोहर्ट्स हो चुके हैं आरबीआई के रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में, तो थर्ड फोर्थ फर्स्ट आपको पता होना चाहिए अगर आप आरबीआई की जीए के लिए स्पेसिफिकली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं, जैसे कि हमें एक्सपेक्टेड था थर्ड की बजाय सेकंड पूछ सकता है, तो सेकंड की थीम पूछी थी उन्होंने। इंटरनेशनल फ्रेमवर्क फॉर डाइजेस्टर रिस्क रिडक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, न्यूज में था ये। टॉप 5 फॉरेक्स रिजर्व होल्डर, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं टॉप 5 कंट्रीज के ऊपर में, तो लास्ट 3-4 मंथ में इस तरह की कोई भी रिपोर्ट है तो उन पे आप फोकस कर सकते हैं, बाकी फ्लैगशिप रिपोर्ट्स आपको पढ़नी होती हैं। इंटीग्रेटेड ओमेंट्समेंट स्कीम अगेन आरबीआई के टॉप 50 सर्कल में पढ़ते हैं, इससे क्वेश्चन था। पर्ल हार्बर अटैक की डेट पूछी गई थी क्योंकि न्यूज में था उस टाइम पे। जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट, अगेन ये जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आरबीआई सेबी का सर्कुलर आया था, तो उससे रिलेटेड ये बार बार न्यूज में था, लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। टॉप 100 सीरीज में हमने इसलिए इंक्लूड किया था क्योंकि ये आईएफएससी एग्जाम में, सेबी के एग्जाम में और आरबीआई की जीए के एग्जाम में भी पूछा गया था, तो हम इन डेप्थ एनालिसिस करके कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए मैच हो जाते हैं क्वेश्चन, और ऐसा नहीं है कि कुछ हम डिफरेंट करते हैं। आपका करंट पार्ट है या आरबीआई की रिपोर्ट्स हैं, ऑफिशियल सोर्स को यूज करके ही कंटेंट बनाते हैं, बट इन डेप्थ एनालिसिस के बेस पे। ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये भी एक आरबीआई का रीसेंट का सर्कुलर था, वहां से क्वेश्चन, तो देख सकते हो कि कितने सारे क्वेश्चन आरबीआई की रिपोर्ट, आरबीआई के सर्कुलर से पूछे गए थे। हेल्थ केयर फैसिलिटी इन आयुष्मान भारत अंडर सोशल इंफ्रा कैटेगरी क्लासिफाइड एज, ये आपका पीएसएल की गाइडलाइन में दिया हुआ है, तो पीएसएल की गाइडलाइन में भी देखोगे तो इन डेप्थ क्वेश्चन पूछा गया है, तो पीएसएल बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन मिनिमम हर बार आ जाते हैं। फिर एक पीएसएल ये न्यूज में था, सर्कुलर था, कुछ अपडेट आई थी, तो वहां से क्वेश्चन पूछा गया। फिर इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन, आरटीआई के ऊपर क्वेश्चन था, आईएफएससी के ऊपर में क्वेश्चन था, स्टार्टअप डेफिनेशन के ऊपर में क्वेश्चन था। फिर बाकी जो क्वेश्चन है ये जनरल न्यूज़पेपर करंट अफेयर, जहां हम इकोनॉमी और फाइनेंस की न्यूज पढ़ते हैं, स्पोर्ट्स की न्यूज, साइंस की न्यूज, उन पे ज्यादा फोकस था। रैंडम न्यूज नहीं पूछी गई थी, जैसे पेरिस ओलंपिक का मस्कट के ऊपर में क्वेश्चन पूछा गया था,
जीएसटी हेल्थ इंश्योरेंस रेट के ऊपर में पूछा गया था, बार बार न्यूज में आ रहा था, अभी तक न्यूज में आता है क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि जीएसटी काउंसिल है वो हेल्थ इंश्योरेंस का को पे जीएसटी को हटा देगी, रिमूव कर देंगे। तो ये न्यूज में था, तो इसलिए उन्होंने उस टाइम पर रेट पूछ लिया था। एनएससी क्रॉस 10 करोड़ माइलस्टोन, तो ये पूछा गया था, न्यूज में था, करंट में ही सितंबर में पेपर हुआ था, अगस्त सीए में था। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे आपके जुलाई अगस्त जून जुलाई अगस्त से ही थे मैक्सिमम क्वेश्चन सीए के जो पूछे गए थे। ग्लोबल पीस इंडेक्स में पूछा गया था, जुलाई सीए का क्वेश्चन था। ग्लोबल चेस लीग स्पॉन्सर पूछा गया था, जुलाई सीए का क्वेश्चन था। ईआईयू लिविंग इंडेक्स जुलाई सीए का, तो जुलाई अगस्त के क्वेश्चंस मैक्सिमम थे, जून के भी थे कुछ क्वेश्चंस, बट जुलाई अगस्त के मैक्सिमम थे। और मैक्सिमम देखो 80-70% से ज्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली कवर थे हमारे कंटेंट में, डायरेक्टली नॉट इनडायरेक्टली। तो आप अगर आप हमारे सोर्स को फॉलो कर रहे हैं, आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग के बारे में पूछा गया था, ये भी न्यूज में था। ई दाखिल पोर्टल, ये भी बार बार न्यूज में आ रहा था। टॉप 5 कंट्रीज एग्री एक्सपोर्ट, तो अगस्त सीए का क्वेश्चन था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, हाउ मेनी नेचुरल साइट, जुलाई सीए का क्वेश्चन था। IRDA पेनलाइज 2 करोड़ ऑन विच इंश्योरेंस कंपनी, जुलाई सीए का क्वेश्चन था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आरबीआई की जीए में पूछे गए थे। तो आपको मैं ये बता देता हूं कि आपको सोर्स क्या फॉलो करने हैं, क्या क्या सोर्स, अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तो क्या क्या सोर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे जीए में अच्छा स्कोर करना है। तो ये मैंने एग्जांपल्स दिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहली चीज है कि आरबीआई के सर्कुलर, लास्ट 6 मंथ के सर्कुलर तो आपको बहुत अच्छे से करने हैं। और बहुत सारे फ्लैगशिप सर्कुलर होते हैं, इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स भी होते हैं। जैसे मैंने बताया कि टॉप 50 सीरीज के सर्कुलर है, जिसमें पीआईडीएफ स्कीम आ गई, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग आ गया, आपका रिटेल डायरेक्ट स्कीम आ गई। तो इस तरह के सर्कुलर से क्वेश्चन आते हैं, 100% आते हैं, आज से नहीं। मैं 16-17 से एनालिसिस कर रहा हूँ एग्जाम को, तब से आते हैं। पहले क्या था कि जीए डायरेक्ट आता था तो इजीली स्कोर कर लेते थे, तो उस पार्ट को इग्नोर कर देते थे स्टूडेंट्स। बट आजकल जीए अनप्रिडिक्टेबल है, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड वाला आता है, आपको बहुत सारे फैक्ट क्राइम करने होते हैं। तो स्टैटिक पार्ट आप 10 से 15 क्वेश्चन अगर वहां सही कर लेते हैं तो 30+ स्कोर इजीली आ जाता है। और आपको दूसरा, ये सर्कुलर्स हैं, आपको फाइनेंस पार्ट में पढ़ने हैं, आपका 50-60% मिनिमम, 60 मोर देन 60 मैं कहूंगा कि सिलेबस इन सर्कुलर से कवर हो जाता है। जैसे एग्जांपल एनबीएफसी पे सर्कुलर है, आपका बेसल नॉर्म्स रिस्क मैनेजमेंट में फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए लीड बैंक स्कीम पढ़ते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन पढ़ते हैं आप, मनी मार्केट में आप कमर्शियल पेपर के ऊपर सर्कुलर है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पे, उसके बाद आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे आरबीआई की गाइडलाइंस है, रिटेल डायरेक्ट स्कीम पे गाइडलाइंस है। अगर हम फॉरेक्स मार्केट की बात कर रहे हैं तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग पे सर्कुलर है, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, आपकी इंटीग्रेटेड ओमेंट्समेंट स्कीम, इन सब के ऊपर में सर्कुलर है आरबीआई के। तो आरबीआई के सर्कुलर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस टॉप 50 जो हमने मेंशन किया हुआ है वो, आरबीआई की रिपोर्ट्स, और जो भी अदर रेगुलेटरी की न्यूज है आईआरडी आईएफएससीए की 3 to 4 मंथ वाली जो न्यूज है, कोई भी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर अगर आप खुद से फॉलो कर रहे हैं, अगर आप हमारा कंटेंट फॉलो कर रहे हैं, उसमें सब न्यूज कवर होती है। टॉप 50 सर्कुलर, रिपोर्ट्स आरबीआई की, जो एफएसआर हो गया, एनुअल रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस हो गया, उसके अलावा आपका करेंसी एंड फाइनेंस एनुअल रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हो गया, ट्रेंड्स इन बैंकिंग एंड प्रोग्रेस हो गया, या एक ओमेंट्समेंट के ऊपर में भी एक रिपोर्ट आती है, ओमेंट्समेंट की एनुअल रिपोर्ट, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये रिपोर्ट्स आपको करनी है। उसके बाद जैसे ये सर्कुलर्स मैंने बताया है ना, जैसे ओल्ड सर्कुलर में स्मॉल फाइनेंस बैंक पे, यूसीबी पे है, इंटीग्रेटेड ओमेंट्समेंट स्कीम, बेसल नॉर्म्स, लीड बैंक स्कीम, केसीसी पे है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर, एनबीएफसीज के ऊपर में सर्कुलर है, ये सब सर्कुलर। और आपको जैसे कि सिक्योरिटी मार्केट के बेसिक्स भी आने चाहिए कई बार, जैसे इस बार म्यूचुअल फंड का एक कॉन्सेप्ट पूछ लिया गया था, तो म्यूचुअल फंड के बहुत बार कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं। जीएसटी के बेसिक आने चाहिए आपको, इनकम टैक्स के बारे में पता होना चाहिए बेसिक एटलीस्ट, इन्फ्लेशन के बेसिक्स जैसे हम WPI CPI ये सब पढ़ते हैं, तो ये सब भी आपको आना चाहिए।
इनसे भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है हमेशा। फिर पीआईबी करंट अफेयर, क्योंकि पीआईबी में ये इंक्लूड होते हैं, तो मैक्सिमम 4-5 मंथ का ही रिकमेंड करेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो 6 मंथ के लिए जा सकते हो, बट 4-5 मंथ इज मोर देन एनफ। पीआईबी न्यूज़पेपर सीए 3-4 मंथ का, ठीक है। इकोनॉमी एंड फाइनेंस की न्यूज को मेनली फोकस करना है। स्पोर्ट्स के भी 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं और साइंस के भी 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। और कई बार जैसे मिसलेनियस करंट अफेयर होती है ना, बुक राइटर, ओबिचरीज, तो इसमें याद रखना कि रैंडम क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। कोई फेमस हस्ती या फेमस पर्सनैलिटी की अगर डेथ हुई है तो ही पूछेंगे, या फेमस पर्सन ने कोई बुक लिखी है तो ही पूछेंगे। जैसे कि शेन वॉटसन की शायद बुक का नाम पूछा गया था, तो स्पोर्ट्स वो क्रिकेटर हैं फेमस शेन वॉटसन, तो उसकी बुक पूछी गई थी। ऐसे रैंडम XYZ की नहीं पूछते हैं, जो नाम आपने नहीं सुना है, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है तो ही बुक पूछी जाती है। तो इसलिए ऐसी न्यूज में आपको सिलेक्टिव होके पढ़ना है। ऐसी न्यूज में काफी सिलेक्टिव चीजें पढ़नी है, जो मिसलेनियस करंट अफेयर में हम बात करेंगे। पीआईबी करंट अफेयर आपको 4-5 मंथ का पढ़ना है। फाइनेंस एंड ईएसआई स्टैटिक अवेयरनेस, सिलेबस ऑफ टॉपिक ऑफ फाइनेंस। आप टॉप 50 सर्कुलर पढ़ रहे हैं तो उससे मोस्टली चीजें कवर हो जाती है। इसके बाद देखो ईएसआई भी आपको कवर करना होता है कि एक बार पीएसएल 5 इयर्स प्लान पे क्वेश्चन पूछ लिया गया था। नेशनल इनकम के फार्मूले पे क्वेश्चन आ जाता है। कई बार पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको नीति आयोग के बारे में पढ़ना है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ना है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको फेज 2 के लिए प्रिपेयर कर ही रहे हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ये रिपोर्ट्स मैंने फ्लैगशिप रिपोर्ट्स के कुछ नाम दे दिए हैं, जैसे ग्लोबल जेंडर गैप, ग्लोबल हैंगर इंडेक्स, मल्टीनेशनल पोवर्टी इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जीडीपी रिपोर्ट बाय IMF, वर्ल्ड बैंक, OECD, UN, ठीक, ये सब करना है। और WTO की भी अगर कोई रिपोर्ट है या WTO का स्टैटिक पार्ट है वो भी पढ़ना है आपको। IMF, वर्ल्ड बैंक के बारे में स्टैटिक पार्ट भी पढ़ना है। न्यूज़पेपर्स मिलता है 3-4 मंथ। और इसके अलावा बजट, इकोनॉमिक सर्वे और स्कीम्स इग्नोर नहीं कर सकते। लास्ट ईयर 8-10 मार्क्स की भी आती थी, इस साल नहीं आई हैं, तो नेक्स्ट ईयर आ सकती हैं, चांसेस हैं। बाकी फेज 2 में तो आपको पढ़नी होती हैं। तो फ्लैगशिप स्कीम्स एटलीस्ट आनी चाहिए आपको। एग्जांपल दे देता हूँ, MG नरेगा, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम्स, ये सब फ्लैगशिप स्कीम्स है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट हो गया, ये सब, महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट है, ये सब फ्लैगशिप स्कीम्स है और ये रिपीटेडली पूछी गई हैं जनरल अवेयरनेस में, ठीक है। और फाइनेंस स्टैटिक, जैसे कि कई बार ISIN कोड पूछ लिया जाता है, IPO के कॉन्सेप्ट्स पूछ लिए जाते हैं, म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट, इन्फ्लेशन का टाइप, स्टैगफ्लेशन का डेफिनेशन हो गया। जैसे GST में ई-वे बिल का अमाउंट पूछ लिया गया था कि ई-वे बिल के लिए मिनिमम अमाउंट किस अमाउंट के पे गुड्स पे ई-वे बिल एप्लीकेबल है, कितने टर्नओवर अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए ई इनवॉइसिंग करना मैंडेटरी हो जाता है। तो इस तरह के स्टैटिक कॉन्सेप्ट भी पूछे जाते हैं। तो आप GA में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, फेज 2 में स्कोर अच्छा करना चाहते हैं, तो ये सोर्स आपको फॉलो करने होंगे। इसके बाहर से पेपर नहीं आता है। 70-80% देखो हमारा लास्ट ईयर भी, क्योंकि हम ये सब कवर करते हैं अपने कोर्स में, और हमारा 70% से तो डायरेक्ट क्वेश्चन 70% प्लस क्वेश्चन आए थे। जैसे 50 आउट ऑफ 70 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे, तो 70% से ऊपर ही है। और कोई सोर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारा कंटेंट फॉलो कर रहे हैं तो इसी पे रिलाई करें। और जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कहीं से भी स्टडी कर रहे हैं, दूसरे कोर्स से भी, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है, जो सोर्सेज बताए हैं, कि आपको ये सब करने ही पड़ेंगे RBI के लिए, ठीक है। अभी जिसने स्टार्ट नहीं किया है या करने जा रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी नेक्स्ट ईयर का हमें पता नहीं कि कब आएगा नोटिफिकेशन, बट जनरली हम मान के चल सकते हैं जो प्रीवियस ट्रेंड है उसके बाद ज्वाइनिंग के 1-2 मंथ के बाद आ जाता है। तो फरवरी या मार्च में ज्वाइनिंग आ सकती है, तो अप्रैल मई तक हम कंसिडर करके चल सकते हैं कि नोटिफिकेशन आ सकता है नेक्स्ट ईयर का। तो जनवरी से पढ़ना स्टार्ट कर दो जो फुल टाइम प्रिपरेशन में है। बाकी अपना स्टैटिक पे पढ़ सकते हो, जो वर्किंग एस्पायरेंट है, पहले अपना स्टैटिक कवर कर लो, उसके बाद फरवरी से एटलीस्ट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दो वर्किंग एस्पायरेंट। और जो फुल टाइम में है उन्हें जनवरी से ही रिकमेंड करूंगा। सर्कुलर, हाँ,
सब सर्कुलर जनवरी से तो जरूर पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी फिर आपका फरवरी में बजट इकोनॉमिक सर्वे आएगा, वो भी बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट क्वेश्चन फेज 2 में आए हैं इस बार, तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। बजट के फेज 1 में 4-5 क्वेश्चन आए थे, फेज 2 में भी कुछ क्वेश्चन आए हैं, तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं जीए के लिए भी, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी रहेगी आपकी, ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी है। एंड अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेगुलर हम अपडेट स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रिपेयर करना है, एग्जाम्पल्स के साथ कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस डेप्थ तक पढ़ना है, तो मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो उतनी डेप्थ में आपको पढ़ना पड़ेगा। प्लस स्टैटिक भी जरूरी है अगर आपको जीए में अच्छा स्कोर करना है, स्कीम्स भी पढ़नी है आपको, बजट भी, इकोनॉमिक सर्वे भी। सो कीप स्टडिंग एंड अपना टाइम वेस्ट मत करिए फालतू की चीज़ों में, सोशल मीडिया पे डिस्कशन में, स्टडी करते रहिए। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।